अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोई 1990 के मिड या लेट 90s की बात है कि हमारे स्कूल की ब्रेक थी। तो मेरे वालिद साहब एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए समर्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ एंड यू शुड डू दिस। और उनको लोगों ने ये बताया है कि दिस विल बी द फ्यूचर। वो जो है वो चीज़ थी कंप्यूटर कोर्स। तो पहला एक्सपोजर मेरा या मेरे साथ के लोगों का था, ये मिड 90s या लेट 90s की बात है, जब हमने समर प्रोग्राम ज्वाइन किया एक, और वाले साहब के कहने पे, और हमने एक कंप्यूटर का कोर्स किया जिसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स डॉस थे और वर्ड स्टार थे। इस बात को आज 25 साल हो गए। 25 साल के अंदर जिस तेजी से ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई है, और आज टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले ज़िंदगी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा था, आज टेक्नोलॉजी एक दुनिया है और ज़मीन उसके अंदर, या हमारी दुनिया उसके अंदर एक हिस्सा है। इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी फैली है। हम हिस्ट्री में बहुत रेवोल्यूशंस आई हैं। आई थिंक नो वन हैज़ एवर विटनेस्ड सच अ रैपिड ग्रोथ ऑन टेक्नोलॉजी। जल्दी से हम पहले एक वीडियो देखते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड देन वी विल कम बैक एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय गेस्ट। The world of work is constantly changing. 65% of children entering primary school today will be doing new jobs that don't yet exist. Technologies that haven't yet been invented will solve problems that aren't even problems yet. You are part of the fourth industrial revolution. Technology is changing quickly. It affects most things you do in life and will impact how you work in the future. What you think is modern and technologically advanced now might look old and slow in 5 to 10 years' time. Think about how the iPhone has changed over the last 10 years. So just imagine what the future of mobile technology could be. New roles are emerging all the time. Just think about the jobs of today that didn't exist 10 years ago. Jobs such as an app developer, social media consultant, and 3D printing engineer. Some of the tech predictions of the future include 10% of the world's population will be wearing clothes connected to the internet. By 2026, smart clothing will be available that changes color and shape and keeps you cool or warm. Artificial intelligence already exists among us in our everyday lives, and whilst they are predicted to take some human jobs, they still need humans to control and program them. Think about those in charge of controlling space robots, police robots, or controlling a robotic arm during surgery. Within 15 years, some things AI and robots are expected to do include driving cars, shopping, and cooking for us. Some of the jobs we know today will be considered being high risk for future automation. The jobs are there, just in a different and technological way. And remember, employees of the future need the skills to do the things that AI cannot easily do: critical thinking, emotional intelligence, and creativity. Some of the digital technology jobs that exist today include cybersecurity specialists, big data analysts, coders, and software engineers. Think, digital technology jobs are on the rise. Wales is playing its part at the cutting edge of new technology. The Academy of Robotics based at Aberystwyth University is aiming to have their driverless car go to deliver packages ready for testing in 2018. Comparison Creator in Cwmbran is developing the latest software for leading comparison websites such as GoCompare and Confused.com. Opportunities to work in the digital sector in Wales will be expanding. The digital sector in the UK is creating jobs 2 times faster than jobs in the non-digital sector. These jobs are usually highly skilled and highly paid. The average advertised digital salary in the UK is £51,000. Yet 3 in 5 businesses are suffering a shortage of digital talent, and more than half say this talent gap is on the rise. तो आप लोगों ने वीडियो देखी। नाउ आई जस्ट स्ट्रेट वांट टू गो टू माय गेस्ट। आज टेक्नोलॉजी इससे रेलेवेंट बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे पास एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, सैयद वजाहत अली। Wajahat has experience of over 20 years in technology sector. He has extensively worked in financial technology through banks, telecommunication sector, and he's currently is working as a leader in cyber security industry. He's a UK qualified graduate in technology. And without wasting any time, thank you very much, Wajahat, for joining. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for inviting me. It's a pleasure. अच्छा वजाहत, ये जैसे मैंने भी स्टार्ट में कहा कि ये एक दुनिया है, जैसे मैं समझता हूँ कि एक 10th प्लैनेट या एक पैरेलल वर्ल्ड अब क्रिएट हो चुकी है हमारे चाहते हुए ना चाहते हुए। आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज बिकम पार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू
टुडे। डिटेल में टेक्नोलॉजी से बात करने से पहले मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हम जैसे लोगों के लिए जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड के हैं, कि ये इंटरनेट है क्या? फ्रॉम वेयर द स्टोरी? Very good question. So, internet की जो birth है, वो आप कहिए कि it's in the Ivy League campuses of the US and Department of Defense, US government basically, where you had a lot of different technologies that were created in those spaces. जिसमें आपके ARPANET का नाम आप देखेंगे 1960s में तकरीबन roughly उस technologies basically it was an evolution. तो अगर आप शुरू करते हैं TCP/IP protocol, उसके बाद फिर ईथरनेट जो केबल सिस्टम्स हैं वो इवॉल्व हुए, फिर ARPANET बना, then the university started coordinating, communicating with each other. So essentially it started from there. जो इंटरनेट की जो बुनियाद बनती है वो आती है तकरीबन समझें आप 1980s, something after that, which where Tim Berners-Lee जो के खालिक भी कहलाते हैं इंटरनेट के, वो अपने कॉलीग्स के साथ CERN में होते थे वो बेस्ड, वहां पे उन्होंने HTTP hypertext markup language basically HTML जो कहलाती है वाइडर नोन उसमें, and the uniform resource locator URL जो कि basically आपका search index है वो create किया, and then basically it evolved into the first incarnation of the World Wide Web. तो यहाँ से शुरू होता है. टेक्नोलॉजी में हमेशा ये हुआ है कि it's been things coming together. आपने माइक्रोसॉफ्ट सुना है, माइक्रोसॉफ्ट जब आपने कंप्यूटर कोर्स की बात की तो मेरे भी वाले साहब कराची में हमें पहली बार बेसिक लैंग्वेज का कोर्स कराया गया था उस वक्त जब नया नया आया था पाकिस्तान में. So essentially Microsoft launches and the personal computing space becomes bigger, which brings technology into our houses essentially. Windows 95 launch हुआ है, उसके बाद फिर आपकी जो है, by the way, fun fact, पहला, it's not really पहला, but it's considered one of the first viruses or for MS-DOS, जो कि आपको याद होगा MS-DOS शुरू में हम लोग सब इस्तेमाल करते थे. वो actually it was made by अमजद अलवी साहब होते हैं लाहौर में, अभी भी हैं वो, CEO है कंपनी ब्रेन के, उसका नाम ब्रेन था. So we have some, as Pakistanis, we should have some pride in that because obviously we started our work early as well on that. And then basically, Internet Explorer gets launched, you have Yahoo, eBay, all these marketplaces start coming up, and then people start to move into this direction. Speed and capacity key increase has always played a role into it, and we'll talk a little bit more about it in a while. And essentially, this is where sort of the internet sort of came from, to answer your question. Okay. So आज बजाज, अगर हम जैसे हम कहते हैं कि technology is a way of life now, or it's part of our life, तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू देयर आर डेफिनेटली फॉर्म्स एंड यूजेजेस, कुछ इंटरफेसेस हैं जो हम डेली यूज करते हैं, जिसमें वेब हो गया, मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एजुकेशन भी अब तो है, और आई थिंक हम आगे बात करेंगे कि पॉलिटिक्स में अब तो कहते हैं कि बहुत क्रिटिकल रोल है टेक्नोलॉजी का. तो आपके हिसाब से व्हाट आर द कॉमन फॉर्म्स एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी आजकल की दुनिया में? Technology basically is essentially the way we work now. And we are going to talk a little bit more about COVID-19 and the pandemic in a little while. मगर essentially अगर मैं basics की बात करता हूँ तो it's everything we do essentially. अगर आप इस वक्त एक अपना मोबाइल देखते हैं, किस तरह वो ऑपरेट करता है आपके घर में, आपके ऑफिस में, it's all, everything is technology based. You're sitting in front of a screen 9 hours a day essentially at work. That's work, So technology is interlinked and it actually enables everything that we do. Just to give you a little, because we want to flow the conversation in that way. ज़ाहिर है सबको मालूम है कि मोबाइल सर्विसेज कैसे काम करती हैं. आपका मोबाइल आपकी लोकल बेस स्टेशन से कनेक्ट करता है थ्रू द एयर, फिर वो कनेक्ट करता है बैक इन MSCs होते हैं, डाटा सेंटर्स होते हैं, स्विचेस, सब चीज़ों से. तो essentially that's the telecom network. मगर कुछ लोगों को, I'm sure a lot of people know this, but I want to show you something which is maybe something that your people would enjoy seeing. Essentially, I want to show you just give me 1 second. कि actually शुरू कहाँ से होता है, because this element of technology actually is always not understood. So जब आपके अपने घर पे बैठे हुए हैं, चाहे वो PTCL की फिक्स लाइन है या वो आपका मोबाइल सर्विस है, मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, you go through your local networks. But when you are going international, let's say you go to a website which is hosted out of California,
So it actually goes through what is called a global submarine cable system, and this is essentially the physical part of connecting you to the rest of the world. और ये आपको मैंने एक picture दिखाया. I know it's a little bit perfect. I'll just zoom into Pakistan, for example. You have just before that, just to clarify one more. So basically, आज भी internet की जो source of वो है, वो आज भी physical cables हैं. That's what you're saying. Absolutely. It actually follows the same idea. ये physical cables की जो बुनियाद है, ये भी 1860s में जाती है. जो आपके telegraphic messaging होती थी 1800s के end में, essentially that was also cable based. Those cables were lying through transatlantic cables थे उसी से शुरू हुई. And this is the same thing. So Pakistan actually has fibers. In fact, let me show you a couple of pictures for visual reference. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइबर जो हैं इस तरह के होते हैं normally. Cables they're sitting under the sea. ठीक है ना, समंदर के थ्रू जाते हैं. यहाँ पे इस तरह ये placed होते हैं, usually sea bed पे इनको place किया जाता है, and they connect you to essentially different countries. It's a whole series of networks. जैसे आपने US जाना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान से US का route कैसे बनेगा. Essentially here it is. आप पाकिस्तान से कनेक्ट करते हैं सुएज कनाल के थ्रू, यू गो टू यूरोप ट्रांसएटलांटिक जाता है यूएस. सो इट्स एक्चुअली अ फिजिकल कनेक्शन. इट्स लाइट ट्रैवलिंग ओवर फाइबर एसेंशियली. अक्सर जो आपने सुना होगा पाकिस्तान में आउटेज हो जाती है केबल कट जो कहते हैं कंट्री वाइड. वो बेसिकली क्या है कि ये जो केबल्स पड़े होते हैं सी बेड पे, अक्सर जो वो फिश ट्रॉलर्स जो आते हैं जो डीप सी फिशिंग करते हैं, they basically actually cut it sometimes or disable it partly. So फिर these ships go up, they pull that up section, they reattach the fibers, and then the connectivity comes up. So essentially this is just a quality of internet में क्यों फिर differing है if you move country to country? I think that has got to do with कि आप कितनी resources लगा रहे हैं. For example, मैं आपको बताता हूँ. यूएई में जब आपका यहाँ पे कट होता है, लेट्स से सुइस कनाल में कट हुआ है इजिप्ट के थ्रू जो जा रहा है, तो उससे यूएई भी इफेक्ट होता है. मगर यूएई की डाइवर्स राउटिंग कहलाती है कि एक आपका इधर से जा रहा है यूरोप के थ्रू, और दूसरा ऑल्टरनेटिव लिंक जा रहा है आपका ईस्ट एशिया के थ्रू एसेंशियली. तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना आपने वो डाला है. अब जाहिर है पाकिस्तान में आई एम श्योर PTCL is not as advanced as some of the Middle Eastern countries or Asian countries. तो उस वजह से आपकी डिटेरियोरेशन ज्यादा फील होती है. This is the main reason. अच्छा, तो this is basically the cable network of internet. ये जो आप दिखा रहे हैं. Correct. This is what supports the global internet. Who owns these who owns this infrastructure? Is it owned by the local company? Very good question. So, sorry, I just have to clarify one thing. Not just the internet, but also your international calling is carried through this fiber. So just to clarify that. This is owned usually by consortiums. Consortiums बनते हैं ये operators जैसे Singapore है. Singapore with UAE का एक consortium. I know Do, for example, had a part in that consortium. And they basically pool together resources to lay this fiber. And obviously, whichever कोई भी company जब इसको use करती हैं, so they make money off it in partial and for themselves as well. इस तरह basically ये होता है. कुछ major consortiums हैं जो कि इसको operate करती हैं globally. They are specialized in it. But essentially, it's a group of operators and those people who invest money to lay it on the floor. Okay. तो ये थोड़ा सा submarine cable का मैं थोड़ा सा view आपको दिखाना चाह रहा था. तो ये तो हो गया आपको hopefully with the mobile network, with your fixed network, you're getting an idea of how it all works together, how it all connects together. अगर आपको आपने इससे पहले वाली स्लाइड दिखाई थी, उस पर जाएंगे थोड़ा सा प्लीज. जी. हाँ, so this is basically क्या है ये, what it says? This is the global network. तो मैंने आपको diverse routing का समझाया ना कि अगर पाकिस्तान में outage होती है, so essentially if you have a cut in the Suez Canal, which is famous for cuts, major cuts यहाँ पे इजिप्ट में होते हैं, essentially because it's a very tight canal and you have a lot of traffic going through it जो कि यूरोप जा रही है मिडल ईस्ट के through, and it can happen, right? So if you have alternative diverse routing, because
आप यूएस के ईस्ट साइड पे यहाँ से कनेक्ट करेंगे और वेस्ट साइड से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे आप. So essentially this is what it is. So it gives you ability to switch your traffic through an alternative route. So this is a global connected route which basically brings the world together. Essentially it's nothing but a bunch of pipes. Yeah, exactly. Very I think बहुत informative है ये. अच्छा, second point मेरा था around telecom technology. So I think we also hear a lot about 3Gs and 4Gs, और I think अब 5Gs भी आ रहा है अब. तो what can you please explain कि ये क्या है telecom, इसकी evolution क्या है 3G 4G 5G? Very good question. So let's start with the whole set of generations that we've seen so far, right? So 1980s में 1G आता है, phone calls. Essentially it was phone calls. Remember वो पूरे brick sized phone जब आए थे, I think 90s के तकरीबन वो common हुए थे पाकिस्तान में. लोग they had to have a driver carrying around a suitcase. तो वो basically कुछ भी नहीं था सिवाय voice calling के. उसके बाद 2G आता है. 2G में आपके बेसिकली सेकंड जनरेशन नेटवर्क में आपके मोबाइल्स थोड़े छोटे हो जाते हैं, प्लस वॉइस कॉलिंग के साथ आपको SMS सर्विस जो कि मैसेजिंग सर्विस थी वो आपको मिलती है, ये लेट 1990s. उसके बाद 2000 में 3G में आपको थोड़ी ज्यादा स्पीड्स मिलती हैं जिसपे आप बेसिकली डिप्लॉय करते हैं इंटरनेट सर्विसेज, डाटा सर्विसेज. तो ये अगर आप टेलीकॉम्स की दुनिया देखें तो उसमें तीन चीजें होती हैं. उसमें वॉइस कॉलिंग होती है, उसमें टेक्स्ट मैसेजिंग SMS सर्विस होती है, और इंटरनेट डाटा सेशंस होते हैं. एक चीज मैं आपको बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग कि 1G से 3G तक अगर आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट देखें फोन का तो आपको याद होगा पुरानी मूवीज में वो सर्किट लगा रहे होते थे. आप कॉल करते थे एक मेन सेंटर में तो वो केबल लगाते थे, वो केबल से कनेक्ट करते थे जहां आपको कॉल करनी है, राइट? क्या था वो? एक इलेक्ट्रिक सर्किट था. It was nothing more than you talking to me through an electric connection which is dedicated between you and me. Okay. ठीक है ना? फिजिकली वो इवॉल्व होते हुए, और वो कॉन्सेप्ट बाय द वे जो कि बेल साहब का इजाद किया हुआ शुरू में 100 साल पुराना, वो 3G तक चला है. तो जब आप फोन कॉल्स की बात करते हैं so you're essentially just doing circuit switching कहलाती है वो, which is nothing but an electric circuit based on the original concept of telephony. ठीक है ना? मगर यहाँ पे हमने इंटरनेट को, यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट जो है वो ग्रोथ शुरू होती है 2001 में. इंटरेस्टिंग टाइम फॉर दिस डिप्लॉयमेंट के आपने देखा होगा कि 2000 में एक .com बबल आता है, ठीक है ना? तो इट इज द टाइमिंग ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑब्वियसली द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग एट दैट पॉइंट बट योर प्लेटफॉर्म्स वर नॉट रेडी टू सपोर्ट. ठीक है ना? तो उस वजह से इंटरनेट यहाँ पे इवॉल्व होता है और फिर almost 6-7 years it grows into what we have 4G, which is essentially a much faster internet service. And it also introduced, because of the speeds, essentially it's a speed, I'll cover it in a minute in like an informative space. आपका पाइप है, उस पाइप में कितना पानी जा रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है. That's all it is essentially. So 4G LTE allows you voice capability. 4G में पहली बार ये जो फोन कॉल्स हैं जो कि वॉल्टी कहलाता है, वॉइस ओवर LTE इज द 4G बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसमें आपकी वॉइप कॉलिंग बेस पे जाती है. तो जो पहले 3 जनरेशंस में सर्किट स्विचिंग थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते थे, वो 4G में एक नया कॉन्सेप्ट आता है. तो नॉट अंटिल 2008 दैट वी एक्चुअली इवॉल्व टू अ वॉइस कॉलिंग सेशन. जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज कमिंग थ्रू प्योर डाटा ट्रैफिक. इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट switching. So essentially this is a big step up in the right direction, 4G mein. And then you have 5G, which I will actually show you a little bit. So we're talking technically. We go to 5G wajah, just because 5G mein ek aur question bhi. So aaj where the majority of the country sits today between 3G 4G और ठीक है सर, मैं आपको ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने. अगर आप GCC देखेंगे तो GCC में हमारा majority consumer जो है वो 4G partially 3G में आ रहा है. Okay. Because in GCC, for example, there are two main demographics. There are people like you and me, or white collar workers, and then there are blue collar workers. जो labor जिनको unfortunately एक misterm किया जाता है. तो वो लोग जो हैं वो basically essentially अभी भी सिर्फ 3G services ले रहे हैं क्योंकि उनके phone sets थोड़े पुराने हैं. That's why they are using 3G. But essentially, it's a market-driven thing.
मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि अगर आप फोन की कॉस्ट देखें जिस तरीके से वो नीचे जाती हैं, इट इज एक्चुअली एन एनेबलर फॉर यू टू जंप. सो अक्सर आप देखेंगे टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑफर्स दे रहे होते हैं, स्पेशली टू माइग्रेट द ब्लू कॉलर वर्कर्स to better phones so they can actually start utilizing the new generation of technology. Because remember, हर टेक्नोलॉजी को पावर करना, डाटा सेंटर्स बनाना, इसका हर का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, इसकी कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड मेंटेनेंस अलग होती है. सो एसेंशियली अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव stepped away from 1G 2G even, और 3G की भी बातें हो रही हैं. आई नो सऊदी में STC ने प्रोक्लेम किया है कि बाय 2024 they will shut off their entire 3G network because they assume कि उनकी जो पूरी ग्लोबल पूरी जो नेशनल पब्लिक है वो 4G या 5G पे आ चुकी होगी उस वक्त. पाकिस्तान की बात करते हैं जरा सी मैं, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में वी आर ऑलवेज अ जनरेशन बिहाइंड एंड एसेंशियली इट्स अ मैटर ऑफ कॉस्ट. Middle East is far more advanced than even some of the European countries in terms of 5G. हमारी 5G deployment almost अगर आप दुबई को लेते हैं तो ज्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वो कवर्ड हैं. 5G की कवरेज, इवन हमारा जो एरिया है उसमें भी 5G कवरेज अब डिप्लॉय हो गया, आई थिंक 2 months back. So the idea is to move people, and then the handsets space improves for you to migrate as well. आपके भी एक रीजन होना चाहिए कि यार अब मैं 5G पे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, मेरे पास अच्छा खासा फोन है, जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, but there has to be a reason, right? So this is how we do it. Pakistan essentially is within, I think, massive amount of users are still on 3G. Rural areas are still on 2G. And I know city coverage of 4G is improving now. जो वहाँ पे operators हैं, they are starting to have good coverage for 4G. Yeah. But I think data services are still, mobile data services are still on the low side. I think clearly we are a decade behind अगर हम पाकिस्तान की बात करें. Easily. I mean 5G जो है वहाँ पे मैं. Yeah. May go ahead, please. नहीं, आपका सवाल था, सॉरी मैंने आपका. हाँ नहीं, मेरा एक पॉइंट और था कि if you look at एक और ट्रेंड जो है from 1G to coming to 4G and then 5G is also affordability, right? So technology over time has become a lot more affordable. Well, essentially it's actually a business model कि अभी आप देखेंगे कि इस वक्त मार्केट में 5G phones जो हैं लिमिटेड हैं. I know certain Samsung has a couple, some Chinese companies ZTE वगैरह का है, मगर mass नहीं है कि हर डिवाइस 5G रेडी है. तो इस वजह से अपटेक भी स्लो होता है. जैसे ही वो डिवाइसेस बढ़ती हैं, आपकी 5G रेडी डिवाइसेस मार्केट में आएंगी, people migrate and then we actually shift people. तो जो मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में जो हमारा मेन यूजर है लेबर तबका, जो कि बेसिकली एक्चुअली यू बी सरप्राइज्ड बाय द नंबर्स इन द यूएई फॉर एग्जांपल, 80% लोग रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है लोगों में, जो कंज्यूमर्स हैं, दे आर इन दिस कैटेगरी. ठीक है ना. तो जब क्या करते हैं ये ऑपरेटर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दे मेक डील्स, they work with partners to actually have devices available where they shift this entire demographic into the next generation. वो इतना सस्ता कर देते हैं कि अगर आप 3G के लिए 3G महंगा कर देंगे कि यार तुम 250 पर मंथ दोगे इसके, तो तुम 200 में 4G में आ जाओ, you get the latest. So this is actually a move thing. तो पाकिस्तान में भी आप यही मूवमेंट देखेंगे, मगर इवेंचुअली वहां पे 5G requires a lot of investment, और जाहिर है अभी वहां पे 4G still is going through the deployment stage. So Pakistan 5G, I don't think you're looking at anything after 2026, 2027 में आपको 5G, unless the government suddenly wakes up and starts investing heavily in this area, this is I don't see it happening in the next 6 years. सही. अच्छा, but पाकिस्तान के कुछ और मसले भी हैं. Please go ahead. नहीं, बताएं please. I haven't covered it here, मगर एक दूसरी चीज होती है फिक्स लाइन. दो टेक्नोलॉजीज पैरेलल चल रही होती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा. ये मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल टेक्नोलॉजी की. फिक्स लाइन टेक्नोलॉजी जो होती है वो बेसिकली इट्स नथिंग बट फाइबर केबल्स बीइंग लेड इन सिटीज. जैसे मैंने आपको सबमरीन केबल दिखाया ना दुनिया का, इसी तरह आप केबल्स ले लें जो कि शहरों को, कम्युनिटीज को, घरों को कनेक्ट करती है. ठीक है. इसमें मिडिल ईस्ट हैज एन एडवांटेज, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे ज्यादातर कम्युनिटीज नहीं है. ठीक है ना. सो इट्स इजी. जब वो क्या करते क्या है वो, कि जैसे फुरजान कम्युनिटी बन रही होगी, नखील के साथ उन्होंने डील की कि भाई जो
ये पूरा एरिया कैप्टिव जोन बन गया डू का। डू ने आके नकील के साथ पूरी केबल्स बिछाई फाइबर की, तो जब आपका घर लाइव होता है तो इट्स एक्चुअली फाइबर रेडी। ओके पाकिस्तान में दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। पाकिस्तान में फाइबर, पीटीसीएल की फाइबर इन्वेस्टमेंट्स आर, I find them, not very good. Essentially, if I use very nice words, there are small operators that are coming up. मगर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं and they target zones where they know they can make money, and that creates a social problem. तो आप सिर्फ मोबाइल टेक्नोलॉजी को ना देखें. In a society to evolve, you also need the fixed line to come up. Achha. And when we talk about COVID, I'll talk a little bit more about that. Please, So over to before you. we move to 5G, last question on this. What does G stands for? Sorry, for a very basic question. Generation. Okay. It's fourth generation, third generation. So for example, 4G की जो base actual technical term है वो है LTE, ठीक है ना? But इसको for market parlay इसको 4G, 5G, 6G पे by the way आज let you 6G पे भी काम शुरू हो चुका है. Wow. So you'll be surprised कि 6G पे भी trials, उसका standard build होना, सब चीजें शुरू हो चुकी हैं. ठीक है. अच्छा, we move to 5G. अब 5G बताने से पहले दो तीन चीजें हैं जो कि अब I think there's a lot of I would say misconceptions या myths around 5G. मैं आपको बताता हूँ जो मैंने सुना है, आपने भी पढ़ा होगा डेफिनेटली. वो ये कहते हैं कि this will, ये कोई हमारे लिए बड़ी खौफ की बात है. The machines will start talking to each other. Human race will start becoming obsolete. कोरोना को भी मैंने एक जगह पढ़ा था. I don't know it's how far it is true कि जी कोरोना जो है उसका पेंडेमिक का भी कुछ रिलेशन है 5G डेवलपमेंट से. So I think when you're talking about 5G, please make sure कि ये थोड़े points भी ज़रा cover हो जाए. Thank you very much. I think there are a couple of points, and we'll talk about that. तो पहले मैं 5G की थोड़ी सी जरा आपको स्पीड के टर्म्स में रेफरेंस दूं. किलोबाइट्स पर सेकंड. मैं और आप उस जनरेशन से हैं जहां हम पाकिस्तान में नेट के आवर्स खरीदते थे, अगर आपको याद हो. बिल्कुल. तो उसमें 34 और 64 और 56 पे भी हमने इंटरनेट सर्फिंग करने की कोशिश की है. एंड वी यूज्ड टू लव इट, राइट? इट यूज्ड टू सर्व the requirements back then. 4G में ये speed around 2009 it goes up to around 100 megabytes per second, जो कि आपकी usual speed है. तो it's a good graphic because I think people can relate to it. कि आप download करना है आपको movie 2 घंटे की, तो कितना time लगेगा? तो 3G में it used to take 26 hours. 4G में it will take you 6 minutes. And in 5G, which is promising speeds of up to 10 to 20 gigabytes per second, not megabytes. You're talking about seconds, literally seconds. So this is just a sort of typical to give you the data services speed correlation here. 5G है क्या? 5G is not just like the previous generation. जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, तो ये previous सारी generations जो हैं up to 4G, ठीक है 4G में video introduce हुई, video calling वगैरह ये सब चीजें. But essentially 5G changes the game. And I'll tell you how it changes the game. 5G 3 different चीजों को सर्व कर रहा है आपके. एक तो आ गया enhanced mobile broadband, जो मैं और आप इस्तेमाल करेंगे. मसलन गीगाबाइट्स की बात की है हमने. हमारा जो यूसेज है, जब आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं 4K कंटेंट अपने फोन पे, तो अपने नेटवर्क से आपको चाहिए गीगाबाइट्स की स्पीड, क्योंकि 4K कंटेंट इज वेरी हैवी. और अब 8K कंटेंट की बात हो रही है, राइट? सो एसेंशियली 5G, ये सब जो सर्विसेज ऑन टॉप बैठती हैं, ओवर द टॉप प्लेयर्स कहलाते हैं. नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी हो गया. इनको एक रोड चाहिए जिसपे ये ट्रैवल करें. द रोड हैज सडनली बिकम वेरी बिग, सो दे कैन एक्चुअली ब्रिंग देयर 4K कंटेंट, 8K कंटेंट. यहाँ पे मैं आपको छोटी सी I'll digress and give you an example. यूके में तकरीबन 1998 circa 97-98 जब .com बबल आया हुआ था पीक पे, you remember that? उस वक्त वहां पे कंपनी थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली नेम, टेलीवेस्ट समथिंग उसका नाम था. तो वो केबल्स ले कर रहे थे, फाइबर केबल्स. लॉट ऑफ मनी स्पेंड, बिलियंस बेसिकली एट दैट टाइम. बट .com बबल में वो हो गए बैंकक्रप्ट, लिटरली वेंट बैंकक्रप्ट. तो उसको स्काई, वर्जिन, ये 2-3 कंपनियों ने कौड़ियों के दाम खरीदा बेसिकली, ठीक है ना? क्योंकि उस वक्त तक कंटेंट जो चाहिए था ना केबल पे, यानी उस वक्त मैं आपको हाल बताऊं, मैं उस वक्त मैंने अपना नया करियर इस्तेमाल किया था, शुरू किया था. O2 वगैरह मेरे क्लाइंट्स थे, मैं साइबर सिक्योरिटी का काम करता था टेलीकॉम्स कंपनी के साथ. तो उस वक्त जो
केबल पड़ा हुआ था जमीन के थ्रू, इन्वेस्टेड मनी, ज़ाहिर खुदाई हुई है, केबल खरीदा गया है और डाला गया है, उसके बाद उसको रिसर्फेसिंग की गई है, घरों से कनेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं। 97% डार्क केबल चल रहा था यूरोप में, आप सोचें, यानी 97% केबल इज सिटिंग देयर टू बी यूज्ड, बट देयर इज नो यूज केस। आप समझे मेरी बात? कोई उस वक्त नेटफ्लिक्स का कंटेंट नहीं आया था 4K जो उसको इस्तेमाल कर सके। तो जब .com बबल हुआ तो इस तरह की कंपनीज ने पूरे यूरोप में भी, यूएस में भी, आई एम श्योर देयर स्टोरीज लाइक दिस, खत्म हो गई ओवरनाइट। और फिर उनको बहुत सस्ता खरीदा वर्जिन और स्काई ने, ठीक है ना। स्काई वहां पे एक होम सर्विस प्रोवाइडर है, यूके आप जाते हैं अक्सर, आपको मालूम होगा। मगर जब वो 2008-9 आता है, जब आपका कंटेंट क्रिएट होता है, ठीक है ना, ओवर द टॉप प्लेयर्स आते हैं, तो वही चीज की वैल्यू, बिकॉज देन यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट, यू एक्चुअली गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये हमारे बात 5G पे भी अप्लाई होती है। 5G 3 चीजें कवर करता है: एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, जैसे मैंने आपको समझाया कि हाई स्पीड डाटा रेट्स, यूनिफॉर्मिटी, एक्सट्रीम कैपेसिटी, डीप अवेयरनेस, मोबाइल डिवाइसेस। आप वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं, अभी हम अभी तो हम लैंडलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, मगर we could do this on a mobile network. Mobile network would support a very fast service for you. तो ये 5G में कवरेज है। उसके बाद अब एक नया यूज केस बनता है जो कि इससे पहले कभी नहीं आया, वो है मिशन क्रिटिकल सर्विसेज। उसमें आ जाती हैं आपकी ऑटोनॉमस व्हीकल्स, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स कहलाती हैं। टेस्ला काम कर रहा है इस पे, काफी आपने सुना होगा इस पे। सो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट्स हैं अल्ट्रा लो लेटेंसी। लेटेंसी का क्या मतलब होता है सर? कि आई विल शो यू सम ग्राफिक्स ऑन इट। द आउटेज विंडो, पोटेंशियल लेटनेस के, वहां से सिग्नल आता है, यहाँ से जाता है, अपलोड होता है, तो कितना टाइम लगता है उसको अपने यानी बेसिकली एंड तक पहुंचने के लिए। लेटेंसी, हाई अवेलेबिलिटी, यू आई मीन आपकी, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं पीछे, गाड़ी खुद ब खुद जा रही है, you don't want a network outage because your car will stop or crash into something. So you need a network that you can rely on, right? Strong security. Well, we'll talk about security a little bit more. I think this is a sale point here. Robotics in every sense. अभी मैं आपको example दिखाऊंगा. Health related robotics, for example. Health services itself, कितनी remote monitoring आप कर सकते हैं, आप अपनी आप की, यानी काफी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे जो है, हम 5G सर्व करेगा एक ऐसे नए यूज केसेस जो कि पहले कभी मोबाइल ने नहीं सर्व किए, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? आपका फ्रिज है, ठीक है ना। इफ इट्स अ स्मार्ट फ्रिज, it basically connects back to the grid and tells the grid कि आपकी पावर यूटिलाइजेशन कहाँ है, आपकी आप कब खोल रहे हैं, कब बंद कर रहे हैं, टेम्परेचर कब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस हो सके। तो जो स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आपके मीटर्स हो गए, एक्चुअली अभी जो करंट यूज केस है वो आपकी दीवा का जो मीटर है वो आपको मॉनिटर करता है कि आपके घर की यूसेज क्या है, कहाँ आपकी अप्लाई, अभी आउटेज हो तो वो उसको रीसप्लाई कर सकें, वो सब चीजें। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इट्स कमिंग इन, एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नॉट जस्ट अबाउट दीज होम डिवाइसेस। आपकी जो वेयरेबल्स हैं, इस वक्त आपकी स्मार्ट वॉच भी है, आपका स्मार्टफोन भी है, जाहिर है आपके पास 10 और स्मार्ट टैबलेट्स हैं, ये है वो है, आपके सीरी पड़ा हुआ है आपके घर में, you have all these devices converging which need the network. 5G will serve that. ठीक है सर? And then you make this bigger from your smart home. The entire city is smart. अभी for example एक use case है, real use case है दुबई में. आप basically you can actually select a parking space before you end up in Dubai Mall because it's all connected. Right. And it'll know कि आप कितना दूर है और दूसरी गाड़ी, So all these things, and Dubai Smart City is a big organization here, as you would know. They're doing a lot of work to connect these different entities. Smart cities, जो पहले networks होते थे कि telecom का अपना network था, Diva का अपना था, so on and so forth. Everything is now going to get connected. This is how you build smart cities. And essentially, you need a road. As I said, 5G is a road, right, which has a lot of capacity. And this is how it gets served. So ये 5G का basically एक business use case है. So just before we move to that, so why human existence के लिए threat है 5G? It's
सर चलें इसको मैं आपको दूसरी तरह से जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल व्हेन वी कम टू डाटा सिक्योरिटी एलिमेंट्स. बट एसेंशियली इंटरनेट जो है ना सर, अगर आप फिलोसॉफिकली थोड़ा उस पे आए, इट्स अ मिरर. इट्स अ मिरर ऑफ योर सेल्फ. तो आप कोई चीज मिरर में, अगर आपके अंदर अच्छा है तो अच्छा नजर आएगा आपको, अगर आपके अंदर बुरा है तो बुरा नजर आएगा. 5G is a technology that can be used or abused. It depends on how you basically, what are you going to do with it. It also depends कि हम as a society क्या barrier set up करते हैं. मगर ये subject मैं आपको, I will ask you to park it because we're going to cover it a lot in when we get to this section about data privacy, because it's all about data privacy. That's where the threat is essentially. with you ठीक है. आपकी इजाजत तो मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ. Please. I just want to give the people some technical comparison. मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें. I'm sure you guys are not interested in that. Latency की बात की मैंने कि आपकी गाड़ी में आप जा रहे हैं, गाड़ी में नेटवर्क आउटेज होता है, यहाँ पे 10 millisecond, micro millisecond का basically difference आता है, right? 10 millisecond means that you can hit another car. It's enough time, the braking distance gets impacted, the car to make a decision about कि आगे क्या हो रहा है, it's a chain effect. 5G में it's -1 millisecond, which means that braking distance, everything, the entire sensor जो system है पूरा गाड़ी में, वो उसको enough time है to react to the changing circumstances around, both at the near, जो कि basically जो करीब के है, और 1 किलोमीटर आगे, क्योंकि जो आपकी autonomous vehicle है, it will plan on both terms, immediate and 1 kilometer ahead क्या हो रहा है, जो कि हम अभी नहीं कर सकते as humans. So they should be in effect more जिसको कहते हैं ना intelligent in regards to knowing कि 2 किलोमीटर आगे क्या सीन है, उस हिसाब से it can manage its speed and which road it is on, which direction. So all these things require latency, and latency has improved immensely in 5G. ठीक है. दूसरी चीज हमने बात की GBs of data, spectrum आप छोड़ दें. मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे connection density. Under 4G हमारा जो assumption था, maybe right, maybe not, depending on which country you live in, you have within a square kilometer 100,000 connected devices. 1 किलोमीटर लें आप, पुरजाल लें पूरा, उसमें 1 लाख devices आपको expected थी to be managed by the 4G. That's no longer the case in 5G. We expect 1 million devices per kilometer to be connected to the network, to be requiring network capacity. 1 किलोमीटर की रेडियस. 1 किलोमीटर, मैं किलोमीटर की बात कर रहा हूँ इसको सिर्फ, ठीक है ना. तो एक्सपेक्टेशंस हैं, और यहाँ पे बात आती है IoT की. ठीक है, तो मैं आपको IoT का भी थोड़ा सा रिव्यू दिखाऊंगा. हम गाड़ी की बात कर रहे थे, थोड़ा सा आपका कोई सवाल तो नहीं है इस स्लाइड के बारे में बिफोर आई मूव ऑन? Go ahead. ओके. हमने स्मार्ट कार की बात की. ऑब्वियसली दिस इज द एवोल्यूशन in social terms as well. We've been talking about car ownership का मॉडल कैसे चेंज हो रहा है with Uber and all these services. In fact, US में अगर आप देखें तो car ownership has actually started to diminish, especially in the big cities, because it's just so convenient to actually get an Uber, over there. तो जब आपकी गाड़ी, essentially आपकी गाड़ी जो है वो एक डाटा सेंटर बन जाएगी. आपके जो अभी चैलेंज है ऑटोनोमस व्हीकल्स में, यही नहीं है कि the science is not there. It's not that. It's actually कि जो गाड़ी को चलाने के लिए जो आपको, क्योंकि these are usually the autonomous vehicles are also electric vehicles, right? Because you need a lot of power. The power to run the car is not an issue. टेस्ला ने ये चीज फिक्स कर दी है, वो चीजें आपके पास हैं. It's the actual issue right now facing the smart car industry is the power you need to run this entire data center. जैसे 4 चीजें होती हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स में, जो अभी हम उसको देख रहे हैं, व्हीकल टू व्हीकल. यानी हर व्हीकल जो है अगली स्मार्ट व्हीकल से बात करेगी. भाई तुम जा रहे हो, तुम्हारा जो तुम डिसीजन ले रहे हो उससे मेरे ऊपर भी डिसीजन ले रहे हैं. इट्स अ चेन रिएक्शन. ठीक है ना. वो जो 1 किलोमीटर वाली बात की थी मैंने आपसे, essentially that's what it is. It's a traversing effect, right? Vehicle to pedestrian, जो लोग चल रहे हैं उनकी जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, they will have to be connected to the grid, क्योंकि ग्रिड विल पिक अप कि यहाँ पे एक इंसान है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड नीचे कर दो. सही है ना. इनफैक्ट जैसे वो मूवीज में होता है ना कि a human walks into the road and the cars just swerve around just to protect it. Essentially you can do it.
It can be done. There is logic to create that, but obviously the human needs to be connected to the network as well. तो ये vehicle to pedestrian आ गया. फिर vehicle to the network, overall network कि city wide क्या चल रहा है. Because the car has to make a decision कि मैं overall कहाँ जा रही हूँ. Maybe जैसे अभी आप GPS जाते हैं तो वो GPS आपको बताता है कि यार इधर से कट ले लें क्योंकि उधर आगे ट्रैफिक है. This is exactly what the car will decide as well on your behalf. कि यार मैं यहाँ जाके फंसूंगी तो I'm just going to do an alternative routing. जो 80s में एक नाइट राइडर का कॉन्सेप्ट था. जी जी जी. आई थिंक जो कि कार कर रही थी. आई थिंक वही है कि अब वो we'll probably see it like very essentially yes science fiction has it. Hopefully इतनी बातें नहीं करेगी जितनी नाइट राइडर करती थी. But it'll do more work. But as you can see, and then finally vehicle to infrastructure, आपके traffic signals हैं, आपके speed meters हैं, आपके cameras हैं. All this infrastructure will need to be connected to the grid. जैसे मैंने आपको बताया 1 million per square kilometers. All these devices are now playing a role in this ecosystem. आप समझ रहे हैं? And then finally, ये expectation है. I think this will be ये कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसमें काफी पढ़ा है and we obviously doing some security work in this relation. तो 4000 GB of data per day. तो एक तो इसको आपको एक छोटा सा डाटा सेंटर चाहिए होगा अपनी गाड़ी में, क्योंकि और फिर then you need a lot of batteries to actually enable this data center to run and communicate, and the network to actually have the latency to allow them to communicate. तो कितना डाटा आ रहा है, ये बात ज़हन में रखिए खुरम साहब. डाटा आपने देखा, आपकी गाड़ी है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ रुक रहे हैं, आपने कहाँ स्लो डाउन किया, आपके अच्छा गाड़ी जो है वो आपको भी मॉनिटर कर रही है बाय द वे. हाँ बिल्कुल. इस गाड़ी में आप कहाँ रुक रहे हैं, आपके क्या से मसलन टेस्ला की गाड़ियों में अगर उसको लगे कि आप सो गए हैं right now, it stops, it reduces and it stops, it gives you a beep. You know that, right? This is already in place. You know that, okay. तो इस तरह गाड़ी ने आपको भी मॉनिटर करना है कि आपका हार्ट रेट कैसा चल रहा है, आपको कुछ हो तो नहीं रहा, आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपके प्यूपल्स जो हैं वो इन द राइट डायरेक्शन है, आप मुड़ के दूसरी तरफ तो नहीं गप्पे लगा रहे किसी से. All these things requires power, and it's actually information being generated about you. यहाँ पे मैं आपको एक लफ्ज दूंगा, डाटा पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट लाइटर. So ये तो एक यूज केस हो गया. Anything sir on this before I move? Benny, please go ahead. Okay, another 5G use case. आप हम यानी इंशाल्लाह किसी को भी ना देखना पड़े, बट कोई मेडिकल सर्जरी जो होगी वो रोबोटिक आर्म्स आएंगे, मशीन्स जो कि अभी बिल्कुल इस वक्त टेस्टिंग फेज में है. This will begin literally very shortly. और द सर्जन होगा वो बैठा होगा यूएस में. तो आप सोचें कि अगर आपका हार्ट प्रोसीजर हो रहा है और आपका सर्जन यूएस में बैठे सर्विस कर रहा है ये रोबोटिक आर्म्स के थ्रू, योर नेटवर्क लेटेंसी एंड नॉट हैविंग एन आउटेज इज की. क्योंकि आपने फर्ज करें नर्स तो काट दी, मगर उसको सीने वाली मशीन जो है वो आउट हो गई, भाई नेटवर्क आउट हो गया. You can't, right? So these use cases require the 5G की जो मैं आपको बता रहा था लेटेंसी का यूज केस, वो यहाँ पे आता है. आपके लिए नहीं आता. अगर आपका नेटफ्लिक्स ड्रॉप हो जाता है तो आपकी जिंदगी पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, आप दोबारा रिकनेक्ट कर लेंगे. दिस इज क्रिटिकल. यस, दिस इज क्रिटिकल. तो वो जो मिडिल वाला सेक्शन था 5G का यूज केस, इट्स सर्विंग दिस साइड. दूसरी चीज जैसे वर्चुअल रियलिटी, मैंने आपसे बात की, यहाँ पे सर्जरी है, वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी इज अ बिग यूज केस फॉर 5G, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत हैवी कंटेंट चाहिए होता है. इनफैक्ट फनी स्टोरी के जो मार्केट प्रेडिक्टर्स हैं वर्चुअल रियलिटी ग्रोथ के, अब 5G तो आ गई है, राइट? अब मसला है कि अब आना है यूज केसेस, कंपनीज, ओवर द टॉप प्लेयर्स हु एक्चुअली यूज दिस सर्विस एंड जनरेट रेवेन्यू. तो उसके लिए जो अभी प्रेडिक्शंस हैं कि अगले 5 साल में वर्चुअल रियलिटी जो उठानी है वो 2 चीजों को उठानी है. एक गेमिंग, ठीक है, जहां पे हमारे बच्चे आ जाते हैं, और दूसरा पॉर्न इज एक्चुअली गोइंग टू बी द बिग यूज केस फॉर वर्चुअल रियलिटी, which in fact porn ने internet growth में भी बहुत हाथ दिया है. I'm sorry, no pun intended there, but essentially 1990s का जो 2000 का जो शुरू है, उसमें जो इंटरनेट की ग्रोथ होती है, it is because the global connectivity का जो यूज केस है वो porn related है. तो वर्चुअल रियलिटी में भी porn ने अपना हिस्सा प्ले करना है. Finally, and we have been talking about connected devices.
Your house. Vajad, before we go there, in 5G, artificial intelligence will also be then elaborate, or it will be established. Artificial intelligence relates to, yes, absolutely, because artificial intelligence is what? Artificial intelligence, by the way, अगर मैं आपको सही बात बताऊं, artificial intelligence is just a buzzword right now. Maybe एक या दो global use cases हैं Google के पास, maybe IBM के पास. Even I don't think IBM has real artificial intelligence. It's actually machine learning right now. Facebook में, for example, 1 million machine learning robots हैं जो कि data points उठा रहे हैं and they are predicting. This is what people are labeling as AI. This is not AI. That's what also what I believe that artificial intelligence is a better usage of data, basically. Yes and no, which is what we're going to cover in data security. अपना जो data privacy की बात करेंगे, उसमें हम artificial intelligence पाएंगे. But yes, all this data, जो आप गाड़ी का data है, आपकी surgery का data है, आपका personal data है, वो ज़ाहिर है उसको churn करने के लिए कोई इंसान तो बैठा नहीं होगा दूसरी तरफ. It has to be a machine learning robot, which eventually they will have AI in it. But AI can be pits and falls, which we can talk about as well. Very good. So I think let's continue, Vajat, and we have a long topic. So yeah, obviously we have to do it in certain parts. So let's cover something in part 1, and then later on we'll talk about Pakistan in detail. So Internet of Things की बात कर रहे थे और data की बात कर रहे थे. जी. The Internet of Things की बात थी. Essentially ये एक picture मैं 5G का जो final use case मैं दिखा रहा हूँ. It's a true enabler for Internet of Things, and what that means is essentially it is connecting your home devices, your each and every component. आप कब अपने टीवी को ऑन करते हैं, आप कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, आप फ्रिज कितनी बार दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फ्रिज में क्या चीजें ला रहे हैं, इवेंचुअली वो भी पता चल जाएगा फ्रिज को कि वो थ्रू RFIDs के आपकी खरीदारी क्या है and all that sort of stuff. Essentially all this is something that we are going to capture. आपने AI की बात की, machine learning की बात की. Essentially those platforms are there to take all this information and take it in and process it and make sense of it. ठीक है ना? तो यहाँ पे basically 5G का final case use case जो है वो खत्म होता है. तो basically Internet of Things ये जो आपने picture दिखाई है, इसका मकसद ये है कि कोई भी घर, मेरा, आपका, हमारा, हम जैसे लोगों का, किसी जो भी कहीं रह रहा है, वो एक डेटा बैंक बन चुका है जिसमें one way or the other ये सारा डेटा जो है वो उसमें हम यूज कर रहे हैं और या हमें हमारी जो हम चीजें यूज कर रहे हैं उससे निकल रहा है. That's what it meant, right? Correct? Exactly right. And this is where we come to the probably इस conversation का जो आखिरी बात मैं करना चाह रहा था, data security and privacy. तो यहाँ पे खुरम साहब आपको मैं 3 कहानियां देता हूँ, ठीक है ना? 8 से 9 साल पहले essentially दो researchers थे. It's a white paper actually available online if you want to read it. उन्होंने 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की बेसिकली टेलीकॉम इंफॉर्मेशन उठाई. अब मैं टेलीकॉम इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आपको समझा दूं. उस जमाने में प्रेवलेंट इंफॉर्मेशन थी वॉइस कॉल्स, कि मैंने खुरम साहब को कॉल की, A नंबर B नंबर, मैंने SMS किया, ये एक और डाटा पॉइंट आप कह लें, और मेरी ब्राउजिंग की हिस्ट्री जो मैंने ब्राउजिंग की, ये 3G के शुरू के डेज में वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन. बाय द वे ब्राउजिंग की हिस्ट्री को कहते हैं EDR, इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकॉर्ड. तो ये डाटा पॉइंट्स उसने उठाए, उसने लिए 2 हॉप्स. मैं हॉप्स थोड़ा समझा दूं आपको. मैं आपको कॉल करता हूं, ये हो गया 1 हॉप. आप कॉल करते हैं 10 बंदों को, वो हो गए 2 हॉप. वो 10 करते हैं 100 बंदों को, ये हो गया 3rd हॉप. Essentially the whole world gets connected within a 7 hop cycle. This is what we term in telecoms. And essentially after 9/11, this hop data was a big element for law enforcement agencies in the US to pursue targets outside across the world. सही है ना? तो coming back to the story, उन्होंने ये 1 किलोमीटर का डाटा उठाया, 2 hops only, not 7 hops, only 2 hops, right? They took it and they analyzed it. They analyzed it and they basically contextualized it. जो चीज आज एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करेगा, वो उन्होंने फिजिकली बैठ के एक्सेल शीट, ये इस नंबर से कॉल, ये बंदा प्रोफाइल बिल्ड किए. You know what they were able to get? This is 9 years back. हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ. वो ये बता सकते थे कि इस बंदे को कैंसर डायग्नोस हुआ है, because
दे फाउंड कि उसने एक कैंसर हॉस्पिटल फोन किया, उसके बाद वो गया, उसने SMS किया अपने दोस्त को जिसमें कैंसर की कुछ बात थी, उसने जाके ब्राउजिंग की, एक खास दवा की कैंसर की उस पर, उसके बाद उसका एक्चुअली 4th पॉइंट वो GPS भी उठाया उन्होंने 1 किलोमीटर के अंदर उसी डिवाइस से रिलेटेड। तो वो कहाँ गया गाड़ी में बैठ के, फार्मेसी दवा। यहाँ पे ये मैंने आपको समझाया डाटा पॉइंट्स, ठीक है ना। अब बात आती है, ये 8-9 साल पहले बात इवॉल्व होना शुरू हुई, डाटा मोनेटाइजेशन। आपके पास, अब टेलीकॉम ऑपरेटर हूं मैं छोटा सा, ये मेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैंने उठाई, इसमें मुझे पता चल गया कि एक बंदे को कैंसर हुआ है, क्लियर। अब मैंने इसको मोनेटाइज करना है। मैं किस तरह मोनेटाइज करूंगा? मैं इसका प्रोफाइल पैक करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार इसकी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, और मैंने जाके ये इंटेलिजेंस उनको बेच देनी है। दिस इज आई एम मोनेटाइजिंग द डाटा। उसकी बेसिस पे उन्होंने मेरे प्रीमियम्स बढ़ा देने या मेरी कवरेज ही कट कर देनी है, समझे आप? तो ये बेसिकली एक सिचुएशन थी 8 से 9 साल पहले। इसको हम लेके आते हैं 2016 में। 2016 में जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की, जो आपने फेसबुक में पढ़ा होगा, जो स्कैंडल निकला है कि हाउ फेसबुक बेसिकली सोल्ड डाटा अबाउट 87 million consumers that went to this company called Cambridge Analytica। उन्होंने पूरी उसकी प्रोफाइलिंग की, और उसमें कितने डाटा पॉइंट्स से, तकरीबन 2000 से 5000 के दरमियान इंडिविजुअल, ठीक है ना। उन्होंने वो इंफॉर्मेशन दी, और फिर उन्होंने उस जो यूजर्स हैं, क्योंकि हर इलेक्शन में, लेट्स टेक द अमेरिकन इलेक्शन फॉर एग्जांपल, उसमें दो रेंज है, एक आपके डेमोक्रेट्स हैं एक साइड पे, और एक तरफ रिपब्लिकन्स हैं, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मिडिल में जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, वो हैं आपके गोल्डीलॉक जोन, जो कहलाती है ना टर्म, गोल्डीलॉक जोन, वो है आपका फोकस। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इनको टारगेट किया, और इन पे एक टारगेटेड वीडियोस, कैंपेन्स, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, आप जो कह लें, उन्होंने उनको किया। एंड द रिजल्ट वाज कि द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, got shifted on its head, and we saw the results, right? ये बात कर रहे हैं आप 2000 से 5000 डाटा पॉइंट्स पे, इतना बड़ा काम हो गया। बाय द वे, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने सिर्फ ये नहीं किया, वो ब्रेक्सिट का भी कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा हाथ है। जो ब्राजील में जो राइट विंग इलेक्शंस हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया में मोदी गवर्नमेंट की इलेक्शन और जो पूरी कैंपेन्स चली हैं ऑनलाइन, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनकी बेवो पकड़े कैसे गए कि उन्होंने इस चीज के बारे में ओपनली बोस्ट किया। They talked about it. They essentially said what they were doing in the media and in news cycles, because they thought, yeah, this is something that you do. That was with 2,000 to 5,000 data points. In the IoT age of 5G, you are talking about a minimum बात कर रहा हूँ, कौन सा भाई, हमें पता भी नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या होंगे इस सिलसिले में। We're talking about a minimum of 100,000 data points. तो बात फिर वहां तक जाएगी कि they can actually, and obviously at the back of it, आपने AI की बात की, right? AI से पहले आपकी पूरी machine learning algorithms बैठी हुई हैं. They're churning this information. They're creating the psychographic profile on you and on me, right? And then they can actually predict कि हम क्या, हमारी क्या वो है, क्या हमारी ख्वाहिशात हैं, क्या हमारी लीनिंग्स हैं, पॉलिटिकल लीनिंग्स, क्या हमारी, what are our views, what will we buy, for example, influence us, change us, and worst, make us do things, because human beings are predictable essentially, and they will predict us, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपने बात की थी ना, is it a threat? Of course, if it's going to be this uncontrolled, जो कि US elections में ये चीज सामने नजर आई है कि यार कितनी आसानी से हो सकता है। How is it going to happen कि 5 साल के बाद जब आपके पास 1 लाख 2 लाख डाटा पॉइंट्स हर बंदे पे मौजूद होंगे, तो आप किस तरह, आप सोच सकते हैं कि उस वक्त किस तरह की कैंपेन्स चलाई जाएंगी जिस पे हमें इन्फ्लुएंस किया जाए। बिल्कुल। तो yes, the threat is there. Okay, so thank you, Wajad. This is, I think, here we end our part 1 of the program. Part 2 mein, I think we will talk in detail about, as you said, about data privacy. I also want to understand कि इतना data जो है, इतनी information, are we controlled? Are we slave to this new technological world?
और फिर एक बड़ा कॉमन तासुर ये है हम लोगों में, आम लोगों में, कि नहीं जी हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम कोई मशहूर लोग नहीं है, तो हमें कोई चेक नहीं करता. सो आई थिंक इस पे ही बड़ी डिटेल में बात करने की जरूरत है, जो हम सेकंड पार्ट में करेंगे. और सेकंड पार्ट में जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लेट्स सी पाकिस्तान in totality, कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लैंडस्केप क्या है. So I think here we end our part 1. Thank you very much, Wajahat, and let's no, thank you for the opportunity. Continue in part 2. Thank you. Thank you very much.